السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرحمان۔ آج آپ کی ملاقات کروائیں گے طارق محمود صاحب سے۔ ان سے آپ کی پہلے ملاقات کروائی تھی ہمارے انٹرویو کے بعد۔ طارق محمود صاحب جو ہیں وہ سوشل میڈیا کی زینت بن گئے تھے، لیکن وہ سوشل میڈیا کی زینت کیوں بنے، اتنے لوگ ان کا انٹرویو لینے کے لیے آئے، اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی، وہ آپ کو بتائیں گے۔ لیکن پہلے آپ کی ملاقات دوبارہ کرواتے طارق محمود صاحب سے اور دکھاتے ہیں کہ ان کے پاس کون کون سی آج سے پرانے ماڈل کی ایکسپینسو چیزیں موجود ہیں اور وہ کون کون سے ملکوں کی سیر کر کے آئے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ طارق صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ طارق صاحب آپ کا انٹرویو سب سے پہلا ہم لوگوں نے کیا، اس کے بعد آپ سوشل میڈیا کی زینت بن گئے کہ سوشل میڈیا آپ کے پاس جو ہے وہ انٹرویوز لینے کے لیے آتا رہا۔ کتنے ممالک کا آپ نے سفر کیا ہے؟ میں نے تقریباً بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے اللہم صلی وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین برحم انت خیر الراحمین یا رب العالمین آمین یا رب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں چھوٹی سی عمر میں یوں ہی تو اس وقت تھی نہیں، تو میں چلا گیا ابوظہبی۔ والد صاحب مجھے لے گئے، کچھ پڑھائی کا مسئلہ تھا یہاں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ان کو ادھر لے جاؤ، بعد میں یہاں بری محفلوں میں بیٹھے گا تو بری آتے ہیں، مطلب ہے کہ پڑھیں گی بعد میں آپ مجھے گلہ دیں گے، والدہ نے کہا۔ تو میں 67 میں چلا گیا تھا یہاں سے۔ پھر والد صاحب کا ایک کاروبار تھا وہاں، الیکٹرک کا، ہارڈ ویئر کا، سینیٹری کا، وہ میں ان کے ساتھ تقریباً 20 سال اٹیچ رہا، 67 سے لے کے 87 تک۔ 87 میں مجھے وہ کچھ وجوہات کی بنا پہ وائنڈ اپ کرنا پڑا کاروبار، تو پھر میں نے شارجہ میں آ کے اپنا ایک دوسرا لائسنس بنوا کے وہاں شفٹ ہو گیا۔ وہاں پھر میں نے بلڈنگ مینٹیننس کا کام اور ساتھ میں آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ کا کام شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہمیں تھوڑا موقع مل گیا اسٹیڈیم میں، پاک رسائی ہمیں مل گئی، تو جب بھی ٹورنامنٹ وہاں ہوتے تھے تو ہم لوگ مختلف کمپنیز کے وہاں سائن ہاتھ سے بنتے تھے اس دور میں، وہ بنا کے ہم لوگ رکھتے تھے۔ اسی طرح ادھر مختلف پلیئروں سے بھی ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ تو یہ ایک کہانی ہے میری۔ دوسرا، مجھے کچھ شوق تھا، کچھ ایسی چیزیں رکھنے کا، وسائل تھے، والد صاحب کی طرف سے اجازت بھی تھی، تو میرے پاس کچھ نایاب قسم کی گھڑیاں موجود ہیں۔ تو یہ گھڑیاں ہیں جی، یہ گھڑی ہے ایک جی بی کمپنی ہے سوئٹزرلینڈ کی، تو ایک کمپنی نے مجھے یہ گفٹ کی تھی، کیونکہ ہم لوگ ان کے ڈیلر تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ایک ہمارا ٹارگٹ اچیو کیا ہے، تو یہ کمپنی کی طرف سے آپ کو گھڑی آئی ہیں۔ اس میں 2-3 تھی، انہوں نے کہا کہ جی آپ نے اس میں سے کون سی چوائس ہوگی آپ کی۔ تو پھر ہمارے پاکستانی تھے مینیجر ان کے، شیخ صاحب، تو انہوں نے کہا طارق صاحب آپ ماشاءاللہ اتنا جوان ہیں، حسین ہیں، تو یہ بلیک جو ہے نا آپ کی کلائی کے اوپر زیادہ سوٹ کرے گی ڈریس واچ کے طور پہ۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے سر، جو آپ ریکمینڈ کریں میرے لیے وہی ہے۔ تو اس کے بعد پھر میرے پاس کچھ یہ راڈو کی گھڑیوں کی کچھ ورائٹی ہے جو میں نے اکٹھی کی ہوئی ہیں وہاں سے۔ تو ان کے بعد میرے پاس پھر ایک زینت واچ ہے، یہ بھی سوئٹزرلینڈ کی ہے، اور یہ بھی کافی کاسٹلی ہے۔ یہ تقریباً اس دور میں تقریباً 8000 درہم تھی اس کی قیمت۔ ہاں جی، تو یہ بھی میں نے دی تھی غالباً 85 یا 6 میں۔ تو یہ گن میٹل ہے، اس کا سیکو کمپنی کی واچ ہے یہ۔ تو یہ ایک اور واچ ہے، یہ بڑی، یہ بھی میں کہتا ہوں نایاب ہے، یہ ویسٹرن واچ ہے۔ یہ 67 میں انہوں نے ماڈل چینج کیا تھا اس کا، تو یہ والد صاحب نے مجھے لے کر دی تھی اس ٹائم میں۔ یہ بھی میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے اور یہ چالو حالت میں ہے۔ اور یہ ایک دوست نے مجھے گفٹ کی تھی، یہ وہ واچ ہے جو کہ یو ای میں اپنے ایئر فورس کے جو آفیسرز ہیں یا ہمارے یہاں سے کوئی ڈیپوٹیشن پہ جاتے تھے تو یہ ان کو گفٹ ملتی تھی، اور میرے خیال میں یہ راڈو کی کمپنی سے اسپیشلی بنوائی جاتی ہیں، اور اس میں یو ای والوں کا لوگو بنا ہوا ہے، اور میرے خیال میں کم از کم نہیں تو 15 سے 20 ہزار درہم کی اس کی قیمت ہو سکتی ہے اس ٹائم پہ۔ ہاں جی۔ تو آج اس کی کیا مالیت ہو گیا؟
बस आज देख लें, आज जो करेंसी रेट आज समझे नायाब हो चुकी बिल्कुल ये नायाब हो चुकी हैं। तो एक और है, वो मैंने बेटे को दी हुई है, वो अबू धाबी के एक हुक्मरान फैमिली से तल्लक था उनका, और इलेक्ट्रिसिटी के वो वज़ीर थे, शेख खलीफा बिन मोहम्मद अल नहान। उन्होंने भी घड़ियाँ इसी तरह अपना प्रिंट करवाई हुई थी राडो की, वो ज़रा डिफरेंट टाइप की थी, वो स्क्वायर में थी और उसका चेन बड़ा खूबसूरत था। तो उसके अंदर उन्होंने अबू धाबी का फ्लैग जो है ना वो प्रिंट करवा के अपना नाम नीचे लिखा हुआ था डायल के ऊपर। तो अबू धाबी का फ्लैग आपको शायद नहीं पता कैसा था। अबू धाबी का जो फ्लैग था ना वो इस तरह था, ये जगह पे सफ़ेद था, बाकी सारा रेड था। तो वो उसमें बना हुआ था इस तरह करके डबल में। वो उसकी कीमत उस वक्त दोस्त ने मुझे बताया कि जी ये कम से कम ये भी 10-12 हज़ार दिरहम से कम नहीं है इसकी प्राइस, क्योंकि वो रॉयल फैमिली है, वो बनाते हैं, उनको इन पैसों से कुछ नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को अपना गिफ्ट देने होते हैं, कोई ऐसे गेस्ट आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो दिल की होती है। अक्सर देखा है कि गरीब लोग वो अपनी चीज़ें महंगी महंगी लोगों को, दोस्तों को प्यार मोहब्बत में नवाज देते हैं, और वो तो रॉयल फैमिली थी। लेकिन अच्छा ये इतना सब कुछ घूमने के बाद, इतने महंगे महंगे शौक़ पूरे करने के बाद पाकिस्तान वापस आए, और वापस आके पौधों से मोहब्बत किस तरह हुई आपको? पौधों से मोहब्बत यहाँ नहीं, मैंने यूएई से शुरू कर दी थी। तो मेरा कफ़ील जो था अपना शारजा वाला, वो पाकिस्तानी थे, उनको नेशनलिटी वहाँ मिली हुई थी, तो हम लोग उनको चाचा चाचा कहते थे। उनका तल्लक था मंडी जजमान से। तो उनको पता था मेरा कि भी मुझे शौक़ है पौधों का। तो उन्होंने कहा भी तारक तैयार हो जाओ, मैं नवा घर बना रहा हूँ, तो आपको मैंने अपना वहाँ आपने हमारा जो है ना गार्डन उसका डिज़ाइन करना है। मैंने कहा ठीक है कर देंगे इंशाल्लाह, आप फिक्र नहीं करें। तो रमज़ान आ गया तो काम शुरू मैंने कर दिया वहाँ पे। तकरीबन मैंने 1.5 महीना वहाँ मेहनत की। तो उसके बाद मैंने तकरीबन कोई 18 से 20 वैरायटी सीज़न फ्लावर थे जो मौसम बहार के, उनकी पनीरियाँ मैंने खुद तैयार की, खुद मैंने लगाई सारी। और जब मैं ईद के दिन नज़दीक आ गए तो मैंने ईद करने के लिए पाकिस्तान आना था, मैं पाकिस्तान आ गया। तो जब कुछ दिन गुजरे तो उनको पाकिस्तान आना पड़ा, उनके बेटे की तबीयत कुछ नासाज हो गई, उनका कोई मसला था जिगर का। तो मुझे उनका टेलीफोन आया रात को कि भी मैं तो लाहौर आया, ये मसला है। खैर मैं सर्विस अपने हॉस्पिटल के सामने गया, गाड़ी निकाली, तो उनको वहाँ मिलकर तो उनसे एक वो कहते हैं जी हमें कुछ इंजेक्शन लिख के दिए हैं वहाँ पर जो हॉस्पिटल है उन्होंने, कि वो एक कोर्स है वो लगेगा तो उनका मामला कुछ बेहतर हो जाएगा। फिर उन्होंने मुझे फिर बताया कि तारक जब ईद पे हमारे एक उनका वहाँ पर कल्चर है अरबों का कि वो एक दूसरे के घर ईद मुबारक कहने जाते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, गावा शवा पीते हैं, और भी जो कोई खिदमत वादा करते हैं एक दूसरे की। कहते हैं कि जब भी जैसे ही लोग आए और मैंने उनको अपना गार्डन दिखाया तो वो बहुत सारे दोस्त से वो यही कहते थे कि मोहम्मद ये तो हम ये फील कर रहे हैं कि जैसे हम लोग हॉलैंड में खड़े हैं। इतनी ज़्यादा उन्होंने आपके काम की तारीफ़ की। मैंने कहा जी मेहरबानी है, मोहब्बत है उनकी। तो इस तरह जो है ना मुझे ये शौक़ पड़ा। फिर मैंने वहाँ और भी कुछ दोस्तों के काम करता रहा और साथ साथ अपने घर में भी लगाता रहा पौधे वगैरह। तो जब मैं यहाँ आया तो फिर यहाँ आके मेरे पास ये एक किस्म था, इसको मैंने काफ़ी अभी प्रमोट किया अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं सूखी लकड़ी भी लगा दूँ ना तो वो भी अल्लाह ताला हरी कर देता है। अल्लाह ताला ने मुझे इतनी रहमतों से नवाजा हुआ है। और आप देख रहे हैं, आप पहले भी आए थे, मेरे ख्याल में कि आपको अभी तक वो केले का टेस्ट नहीं बोला होगा। बिल्कुल मुझे याद है कि जब मैं अपनी जगह पे, लेकिन टेस्ट नहीं बोला होगा जब आपने खाया होगा। मैं बल्कि अपने कैमरामैन साहब को बता रहा था, मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि जब मैं 1 साल पहले सबसे पहला इंटरव्यू तारिक साहब का मैंने किया, उसके बाद हमारे जितने भी मीडिया के भाई हैं उनका तांता बन गया था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज भी मुझे याद है जब आपने मुझे केले टेस्ट करवाए तो यकीनन उन जैसे केले मैंने आज तक वो फ्रूट अपनी लाइफ में नहीं खाया था इस उम्र तक।
चलें जी, आपकी मोहब्बत है, आपने याद रखा हमारी उस तोहफे को। यकीन माने मैंने इमरान अली साहब को कहा कि भाई मंगवा लो, ख़राब हो रहे हैं, फिर भी उन्होंने अपना उनको भेजा, उनके जो कैमरामैन थे वो आए, आके लेके गए। उनको यहाँ भी मैंने खिलाए, उनकी सिस्टर साथ में थी, मुजम्मल से गालबन उनका नाम है ना शायद, जो उनके नहीं वो मुजम्मल साहब याद आ गया मुझे नाम। तो मुझे अभी इमरान खान साहब अपने वो कहते हैं इमरान अली साहब कि हाजी साहब आपके केले ने धूम मचाई हुई है, तो मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं, मैंने उनको केला भेजने हैं, तो आप मुझसे कीमत ले लें। मैंने कहा कि इमरान साहब बड़े अफसोस की बात है, अगर मैंने कारोबार करना होता तो मेरे ख्याल में जिस तरह का मेरा केला मैं तो हज़ारों रुपए कमा सकता था, लेकिन मुझे नहीं मालूम होता कि जब फल लगता है और जब वो तैयार होता है तो अल्लाह की ज़ात मुझे किस किस तरफ भेज देती है कि जाओ ये फ़लाँ को मैंने देना है, मेरे दिल में ख्याल होता है फ़लाँ को देना, फ़लाँ को देना, फ़लाँ को देना। बाकी मैंने कहा रहा मसला, जो भी मुमकिन हो सकेगा मैं आपके लिए करूँगा। तो बाकी आपने जी यहाँ से बाई पार्सल इस्लामाबाद भेजना है उनके पास। तो इस दफ़ा जो लास्ट मेरा फल लगा ना वो कोई इतना काबिल ज़िक्र नहीं है, ठंड की वजह से वो ऐसा हो गया जैसे ना डंडे की तरह केले का सख्त, नहीं ख़राब तो नहीं हुआ, उसको मैंने तैयार तो किया, लेकिन वो मज़ा तो तकरीबन इतना था उसमें, लेकिन उस तरह बड़े नहीं हुए, फूले नहीं केले जिस तरह पहले थे। मेरा अगला जो प्लान है ना, मेरी छत काफ़ी बड़ी है, ऊपर तकरीबन 25 फुट बाई 50 फुट है, तो उसमें मैं कुछ पौधे ड्रैगन के लगाना चाह रहा हूँ, जो मैं इंशाल्लाह जल्दी वो लगा दूँगा। और दूसरा मैंने ब्लैकबेरी और अंजीर की एक वैरायटी है टाइगर अंजीर, वो मैंने कुछ पौधे मंगवा के ऑलरेडी यहाँ पर रखे हुए हैं। इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे काम बढ़ेगा हम उसको आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी, आपका शुक्रिया। जैसे कि तारिक महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया कि उनको पौधों से मोहब्बत कैसे हुई और किस तरह वो शाही ख़ानदान का यूएई में जो बागीचा था उसको संभालते थे, देखभाल करते थे, और उसके बाद उनको फूलों से पौधों से मोहब्बत रही और आज वो अपने मुल्क में वापस आ गए हैं। दुनिया में अपने जितने भी उन्होंने अपनी उम्र में जवानी में शौक़ पूरे किए, महंगी घड़ियाँ उनके पास, ग़िलाफ़े काबा और ख़त्म नबूवत की जो मोहरें हैं उसका अक्स उनके पास, इस तरह की तरह तरह के शौक़ उनको थे और वो संभाल के रखते थे। आज वो अपनी उम्र के इस हिस्से में भी पौधों के साथ वैसे ही जुड़े हुए हैं जैसे वो अपनी जवानी में थे, और अब उनका मिशन है कि वो ड्रैगन का पौधा और जो टाइगर अंजीर है उसको ला के अपनी छत के ऊपर फार्मिंग करेंगे। तो यकीनन ये अपने मुल्क से मोहब्बत ही है कि वो आज अपने मुल्क में वापस आके और गो ग्रीन की तरह काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है वो इन्वायरमेंट चेंज हो और हर जगह दरख्त और पौधे लगें। इसी के साथ अपने मेज़बान को आप इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात करेंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह के बाद।